Hello guys, welcome once again. And today in the series of NEET PYQs, we are going to solve work power energy for the last 10 years. Okay, so let's start. In NEET 2024, they have asked one question, actually two questions. So one question was, at an instant of time t, the displacement of any particle is given by displacement means x is given, x is equal to 2t minus 1 means x is given the function of at the function of time. Okay, under the influence of force कितना given है? Force is equal to 5 Newton. Okay, the value of instantaneous power they're asking. So we know power formula, power is equal to F dot V. So for that V F is given, we need velocity. So let's we differentiate this one because we know v is equal to dx by dt. So if we are differentiating, then outcome will be 2 meter per second. Okay, and they are saying the particle is displacing because the influence of force. That means force and velocity they are in the same direction. So angle will be 0. So fv cos 0. That means now put the value of f is 5 and velocity is 2. So that means instantaneous power will be 10 watt. Is there any option? So option A will be the correct answer. Okay. Now next question. Next question in 2024 only they have asked two bodies A and B of same mass undergoes completely inelastic collision. Inelastic one dimensional collision. Inelastic. Inelastic means after collision they will move together. Okay, the body A moves with velocity v1 while body B is at rest before collision. The velocity of the system after collision is v2, the ratio of v1 and v2. Okay, so just we can assume before collision. Before collision case is what? Before collision, it is given like one body is there, that is body uh, two bodies of same mass. Same mass means we can consider mass m. Body A is moving with velocity v1. Okay, and body B of same mass, that is at rest, means velocity is u2 is equal to 0 and u1 is equal to v1. Okay, after collision. After collision is what? After collision. After collision, they are saying after collision, what is happening? They are saying the collision is completely inelastic, means perfectly inelastic collision. That means after collision, both bodies will move together, A and B, and they are moving with velocity v2. Okay, mass m and m. So now apply conservation of momentum. Conservation of momentum means conservation of momentum means initial momentum and final momentum will be same. So initial momentum कितना है? Initial momentum m into v1 plus m into 0 because second velocity is 0. Now after collision कितना हो जाएगा? m v2 plus m v2. देखो अब यहाँ से m m m कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? v1 is equal to 2 v2. So v1 upon v2 कितना हो जाएगा? v1 upon v2, that means 2 is to 1. So option B will be the correct answer. Okay. Now next question. Next question in 2023 they have asked the potential energy of long spring when stretched by 2 centimeter is u. If the spring is stretched by 8 centimeter, then potential energy stored in it will be. ठीक है, मान लेते हैं we are having one spring. Okay, we are having one spring and spring index is k. Okay, and we know potential energy का फॉर्मूला होता है half k x square. Okay, so initial potential energy they are saying, that is, u1 is equal to u is equal to half k
we have considered, and they are saying that stretched by 2 centimeter means 2 square. इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम मीन्स फाइनल, फाइनल वी आर राइटिंग वो कितना हो जाएगा 1/2 के एंड स्ट्रेच बाय 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर मीन्स 8 यहाँ पर रख लो, इसको इक्वेशन 2 कर दो, ठीक है। नाउ इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, ठीक है, करते हैं। तो कितना हो जाएगा u2 upon u1 means u only, this one half k 8 square means 64 upon half k or 2 square means 4, half k, this one 16, so u2 is equal to 16 times of u। कोई ऑप्शन है? आंसर D will be the correct answer। Okay, now next question, next question है a particle moves with a velocity 5 I cap minus 3 j cap plus 6 k cap meter per second horizontally under the action of constant force, this one the instantaneous power supply, ठीक है। सिंपल, वेरी सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे पावर, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, अप्लाई कर लो। एफ की वैल्यू कितनी है 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 20 के कैप डॉट वी की वैल्यू है 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। चलो डॉट प्लॉट करते हैं, आई टू जे के टू क्या होता है ये हमको पता है। देखो 10 इंटू 5 50, देन 10 इंटू माइनस 3 माइनस 30, देन 20 इंटू 6 120, ठीक है। तो कितना हो गया मेरे 50 माइनस 30 20 और 20 प्लस 120 140 watt, that means option D will be the answer। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग विद अ ब्लॉक अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है। देखो मैंने बोला यहाँ एक स्प्रिंग कंसीडर कर लो फिर से, ठीक है, और एक ब्लॉक है इधर और ब्लॉक, ठीक है। मैंने इसको जैसे ही इधर अप्लाई किया कोई फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर होगा दैट इज इक्वल टू एफ रिस्टोरिंग एफ आर लिख लो, दैट इज माइनस के एक्स, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, सो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन अप्लाई होता है मेरा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और दे आर सेइंग रिस्टोरिंग फोर्स मींस एफ एक्स दिया है, एफ एक्स लिख लो, एफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला क्या हो जाएगा, जब एक्स पॉजिटिव हो तो एफ नेगेटिव हो, और जब एफ पॉजिटिव हो तो एक्स नेगेटिव हो। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो एन नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद अ maximum load of 2000 kg is moving up with a constant speed of 1.5 meter per second. The frictional force opposing the motion is 3000 Newton. The minimum power delivered by the motor to the lift in watts is। ये कल का क्वेश्चन है, कल भी हमने ये क्वेश्चन किया, चलो फिर से देख लेते हैं। चलो लिफ्ट ऐसे, लिफ्ट ऐसे, और लिफ्ट का नेट मास कितना है, नेट मास है उसने बोला कि नेट मास है मेरा 2000 kg, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा एम जी, एम जी बोले तो जी की वैल्यू कितनी है 10, तो मेरा हो जाएगा 20,000 न्यूटन, ठीक है। और उसने बोला है कि लिफ्ट इज गोइंग अप, लिफ्ट इज गोइंग अप विद वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड, और रजिस्टिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, मेरा एक फ्रिक्शनल फोर्स है कितना है 3000 न्यूटन। तो देखो एक फॉर्मूला होता है पावर, पावर इज इक्वल टू एफ नेट इनटू स्पीड, ठीक है। तो देखो एफ नेट कितना हो गया मेरा 20,000 प्लस 3000 इंटू स्पीड 1.5, देखो 23 इंटू 1.5 मेरा होता है
34,500 सॉरी वॉट। ठीक है, तो आंसर मेरा कौन सा आ गया? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। उसने बोला है नेक्स्ट, द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय अ 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। ठीक है, मेरे को देखो एक पावर का फॉर्मूला, पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी क्या हो जाएगा? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना है? पावर इज 100 किलोवाट मीन्स 10 to the power 3 इंटू 1 आवर। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60 इंटू 60। ठीक है, तो कितना हो गया मेरा? 3 4 5 6 7, 10 to the power 7, 10 to the power 7, 10 to the power 7 and 6 into 6 36। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, in 2021 they have asked, a particle is released from height s from the surface of the earth. At a certain height its kinetic energy is 3 times of its potential energy. The height from the surface of earth and the speed of the particle at that instant are respectively। चलो देखते हैं। मैंने बोला एक पार्टिकल है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है, यहां से मैंने पार्टिकल को रिलीज किया, रिलीज। हाइट कितना गिवन है? हाइट बोला उन्होंने कि रिलीज फ्रॉम हाइट एस, रिलीज फ्रॉम हाइट एस। ठीक है, अब चलो मान लेते हैं उसने बोला है कि एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स। तो मैंने बोला चलो कहीं कहाँ, इधर मान लो, इधर इसका कितने हाइट पे? फ्रॉम ग्राउंड से एच हाइट पे इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है? 3 टाइम्स करके। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो इन व्हेन वी हैव रिलीज्ड, तब एनर्जी होगी उसके पास, एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ओनली होगी, रिलीज मीन्स काइनेटिक एनर्जी उसके पास नहीं होगी। तो यू इज इक्वल टू एम जी इंटू एस। ठीक है, इसको इक्वेशन वन बोल दिया। नाउ एट पॉइंट ओ समथिंग, ठीक है, एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ कितना बोला है? उसने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स पोटेंशियल। ठीक है, तो मैंने बोला कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी हो गई, पोटेंशियल मान लेते हैं कि कितना हो जाएगा मेरा? यू डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी उसने कितना बोला? काइनेटिक एनर्जी बोला उसने 3 टाइम्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी मीन्स 3 u डैश। और वो कित इफ वी आर अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तो वो किसके बराबर होगी? होगी इनिशियल के बराबर। तो कितना हो गया? 4 u डैश इज इक्वल टू यू ओनली। तो u डैश कितना आ गया? u डैश आ गया मेरा यू बोले तो एम जी एस, और यहाँ पे क्या क्या लिखना है? यू डैश लिखता है एम जी एच, बिकॉज हाइट यहाँ पे कितना है? एच ओनली। ठीक है, तो देखो एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, एच की वैल्यू आ गई मेरी s/4, एस की वैल्यू h/4। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है मेरे से and the height from the surface of the earth and the speed, height from the surface of earth s/4 means s/4 में means b c d कोई ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे उसने बोला है कि स्पीड, स्पीड बोले तो अप्लाई कर लो, अप्लाई दैट इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल, तो मैंने s2 बोल दिया। ठीक है, लो, कुछ ही बोल दो। ठीक है, तो यहां से देखो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड s2 is equal to s minus h, that means 3h/4। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लो, यहाँ वैल्यू पुट कर लो, देखते हैं। और इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए बोले तो जी, ए बोले तो जी इंटू s2 बोले तो 3h/4। देखो 2 से ये कैंसिल हो गया 2, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा? रूट ऑफ 3gh/2। है कोई ऐसा ऑप्शन?
ऐसा अपना ऑप्शन हो जाएगा 3 G सॉरी S टू कितना है 3S/4 यहाँ पर 3S/4 ठीक है, मीन्स ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है water falls from a height 60 meter at the rate of 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to frictional force are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? ठीक है, मेरा पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू दैट एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी लिख लो mgh पर यूनिट टाइम। तो देखो मास पर यूनिट टाइम गिवन है कितना है, m बाई टी की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, m बाई टी की वैल्यू गिवन है 15। तो यहाँ लिख लो 15। g की वैल्यू कितना गिवन है, g की वैल्यू 10 है, 10 लेना है तो 10 लिख लो। हाइट हाइट कितना है 60 मीटर तो 60 लिख लो। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9000 वाट, 9000 वाट। बट उसने बोला है कि 10% ऑफ एनर्जी इज lost due to frictional force. So P generated is equal to remaining कितना होगा 10% means 0.9 of the initial energy will be generated into 9000। तो मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा 8100 watt, that means 8.1 किलोवाट। आंसर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन 2020 उसने पूछा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10 टू द पावर -20 जूल, दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली। उसने जस्ट यूनिट कन्वर्जन पूछा है, तो मेरे को पता है दैट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 जूल इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसने पूछा है 10 टू द पावर, तो यहाँ पर दैट्स वाई 10 टू द पावर -20 जूल मीन्स 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से देखो 10 टू द पावर -19 और 10 टू द पावर इसको कैंसिल किया तो -1 बचा। ठीक है, दैट मीन्स 1 अपॉन 160 हो जाएगा मेरा। ठीक है, 1 अपॉन सॉरी 1.6, हाँ दैट 1 अपॉन 16 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज 1.6 और वो 10 टू द -1 नीचे आएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 1/16 होता है मेरा 0.0625, तो अप्रोक्सीमेटली 0.06 बोले तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2019 में पूछा है a force F is equal to 20 plus 10y acts on a particle in y direction where F is in Newton and y is in meter, work done by the force to move the particle from y is equal to 0 to y is equal to 1। नॉर्मली वो x में पूछता है तो इसको कोई दिक्कत नहीं, उसने सारी चीजें y में लगा दी तो हम y में कर लो। मेरा होता है वर्क डन का फॉर्मूला दैट इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू dy और लिमिट्स लगा दो। देखो वैल्यूज पुट कर लो, वैल्यूज पुट किया मैंने, f की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 10 y dy। ठीक है, और लिमिट्स हो गए मेरे 0 to 1। तो यहाँ देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 20 का इंटीग्रेशन 20 इंटू वाई प्लस 10y का इंटीग्रेशन 10y² अपॉन 2। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट 0 to 1, 2 5 से 10 होगा। ठीक है, अप्लाई कर दो हायर लिमिट, सो 20 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1² माइनस लोअर लिमिट में 0, सब कुछ 0 हो जाएगा, 20 प्लस 5 मीन्स 25 जूल। 25 जूल बोले तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला अ बॉडी ए ऑफ मास 4m moving with speed u collides with another body b of mass 2m at rest. The collision is head on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost
by the colliding body A is। ठीक है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, हमको पता है that fractional change del in kinetic energy delta ke upon ke is equal to, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो इसमें वैल्यूज पुट कर लो। 4 इज 4 ओनली, फर्स्ट वाला m1 कितना है, m1 बोले तो 4m, और m2 बोले तो 2m। ठीक है, तो 4m इंटू 2m अपॉन यहाँ पे कितना 4m प्लस 2m होल स्क्वायर। देखो ऊपर कितना होगा, ऊपर होगा मेरा 4 इंटू 4 इंटू 2m स्क्वायर। ठीक है, अपन अपन नीचे 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर होता है 36m स्क्वायर, m स्क्वायर कैंसिल, और 4 9 × 36, तो 4 × 2 8, 8/9 मेरा आंसर आ जाएगा। 8/9 बोले तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसने बोला अ डिस्क ऑफ रेडियस 2 meter and mass 100 kg rolls on a horizontal floor. Its center of mass has a speed of 20 centimeter per second. How much work is needed to stop it? देखो रोलिंग मीन्स यहाँ पर मेरा एक रोलिंग का एनर्जी होगा, रोटेशन का एनर्जी होगा, और एक मेरा लीनियर का एनर्जी होगा। दैट मीन्स डिस्क कैसे मूव कर रहा है, डिस्क ऐसे मूव कर रहा है, डिस्क ऐसे रोटेट भी कर रहा है और ऐसे मूव भी कर रहा है। तो मेरे पास क्या होगा, एक ओमेगा भी होगा और एक इसका लीनियर वेलोसिटी भी होगा। ठीक है, और चलो इसका रेडियस कितना, रेडियस इसने दिया है 2 मीटर। ठीक है, तो मैं इसको वर्क डन क्या होगा, वर्क डन मेरा होगा दैट वर्क डन इज हाउ मच वर्क इज नीड। ठीक है, वर्क डन मीन्स काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ, और ट्रांसलेशन का एम वी स्क्वायर। ठीक है, और हाफ कॉमन ले लो। ठीक है, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा होता है कितना हो गया, हाँ, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, वी इक्वल टू आर ओमेगा से मैंने लिख दिया इसको वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस हाफ, हाफ तो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हाफ को नहीं लिखेंगे हम लोग, एम वी स्क्वायर। ठीक है, देखो आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना हो गया, ये मेरा हाफ, यहाँ बचा एम वी स्क्वायर बाई 2 प्लस एम वी स्क्वायर, दैट मीन्स 3/2 एम वी स्क्वायर। 3/2 मीन्स 1/2 इंटू 3/2 एम वी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लो, कितना होगा 3/4, एम बोले तो कितना कितना है एम, 100 एंड कहाँ गया, ये हो गया मेरा एम वी स्क्वायर बोले तो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 20 मीन्स 20 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरा यहाँ से 25, 25 मीन्स 75 इंटू 20 इंटू 20 400 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, और यहाँ से इसको मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरा 10⁻2 से -4 से ये 20 एंड देन 75 इंटू 4 मेरा होता है 300। सो आंसर आ गया मेरा 3 जूल। 3 जूल बोले तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट उसने बोला है, क्या बोला है उसने, द वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट h which is equal to the radius of earth is। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो मेरे को पता है रेडियस ऑफ अर्थ, ये ग्रेविटेशनल क्वेश्चन हो गया बेसिकली। तो मेरे को पता, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम सरफेस पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, -G m m अपॉन r। ठीक है, और इफ वी आर गोइंग एट सम हाइट, तो यू फाइनल कितना हो जाएगा, यू फाइनल मेरा हो जाएगा -G m m अपॉन r प्लस h, और उसने हाइट कितना दिया है कि इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसका मेरा फाइनल हो जाएगा -G m m अपॉन r प्लस r बोले तो 2r। ठीक है, और मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन बोले तो वर्क डन हो जाएगा मेरा u फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल यहाँ रख लो,
पुट कर लो, कितना हो जाएगा मेरा यू फाइनल बोले तो माइनस जी एम एम अपॉन 2r, और माइनस माइनस प्लस हो गया जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, और इससे मेरा आ गया कितना जी एम एम अपॉन 2r। अब देखो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन मीन्स r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड। देखो g कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर मेरा होता है स्मॉल g, तो स्मॉल g m r अपॉन 2। देखो ये वाला आ गया मेरा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर बोले तो ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट 2018 में पूछा है अ बॉडी at rest, a body initially at rest and sliding along a frictionless track from a height h as shown in the figure just complete a vertical circle of diameter AB is equal to d. The height h is equal to, ठीक है, मेरे को पता है टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन और टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, टू कंप्लीट टू कंप्लीट वर्टिकल वर्टिकल सर्कल दैट स्पीड ऑफ बॉटम पॉइंट कितना होना चाहिए, कल ही डिस्कस किया था। स्पीड ऑफ ए शुड बी कितना होना चाहिए, वेलोसिटी स्पीड ऑफ ए विल बी इक्वल टू रूट 5 जी आर, ये होना चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखते हैं। अब देखो कुछ नहीं, यहाँ स्पीड ऑफ ए इतना होना चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो अप्लाई कर लेते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कितना एट हाईएस्ट पॉइंट कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया एम जी एच, और दैट विल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पर हाफ एम वी ए स्क्वायर, दैट मीन्स कितना हो जाएगा हाफ एम वी ए स्क्वायर बोले तो इंटू 5 जी आर। बट आर उनने दिया नहीं है, आर बोले तो आर उन्होंने दिया नहीं, यहाँ पर दिया उसने डी, तो आर आर इज इक्वल टू डी बाई टू हो जाएगा। ये कंप्लीट डी डी दिया ए टू बी। ठीक है, तो यहाँ पुट कर लो, कितना हो जाएगा एम से एम कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, एच इज इक्वल टू आर की जगह पर डी बाई टू लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू डी दैट 5 डी बाई टू, कितना आ गया 5 डी बाई 4। 5 डी बाई 4 विल बी द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स अपना कौन सा हो रहा है ऑप्शन डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला उसने a moving block having mass m collides with another stationary heavy mass of 4m. The lighter block comes to rest after collision when the initial velocity of the lighter block is v, then the value of coefficient of restoration will be। देखो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले उसने बोला देखो बिफोर कोलिजन लिख लेते हैं, बिफोर कोलिजन बिफोर कोलिजन। ठीक है, बिफोर कोलिजन मूविंग ब्लॉक ऑफ मास है। ठीक है, एक ब्लॉक है, कितने का है मास m। ठीक है, इसका वेलोसिटी मान लो, कितना वेलोसिटी मान लो वेलोसिटी, अच्छा, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर ब्लॉक v है, तो इसका v हो गया। ठीक है, और सेकंड ब्लॉक क्या है, सेकंड ब्लॉक का मास है 4m। ठीक है, और इसका वेलोसिटी कितना है, ये है अपना रेस्ट पे v2 इसको। ठीक है, अब उसने बोला है कि दैट आफ्टर कोलिजन क्या है, आफ्टर कोलिजन केस देखते हैं। आफ्टर कोलिजन केस क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन बोला है उसने कहाँ गया, द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन। देखो लाइटर ब्लॉक मीन्स एम वाले का इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा v फाइनल ऑफ फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0। तो मेरे को पता है जो ही वेलोसिटी होगा वो सेकंड वाले का हो जाएगा, तो मैंने बोल दिया इसका 4m वाले का कुछ वेलोसिटी हो जाएगा, इसका मैंने लिख लिया कितना v। ठीक है, अप्लाई कर लो। अब क्या अप्लाई कर, हाँ चलो अब अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मींस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दैट मींस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा एम वी प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 4 एम वी फाइनल टू।
ठीक है, एम से एम कैंसिल हो गया, तो वी फाइनल टू कितना हो गया, वी फाइनल टू बोले तो वी बाई फोर, वी बाई फोर। ठीक है, अब देखो इसका ये कितना हो गया, वी बाई फोर। और मेरा फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया, देखो वी बाई फोर हो गया, बिकॉज इसका तो वी बाई फोर हो गया, ये वाला वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया मेरा वी बाई फोर। ठीक है, बिकॉज इस वाले का तो जीरो हो गया, इस वाले का तो जीरो है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मींस वी बाई फोर। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखो, इस वाले का जीरो है और इस वाले का वी है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वी हो गया, वी से वी कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, वन बाई फोर। वन बाई फोर बोले तो 0.25, 0.25 बोले तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है अपना 2017 में, 2017 में उसने बोला कंसीडर ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed 50 meter per second. Take g value as 10 meter per second square. The work done by the gravitational force. ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पहले कर निकालो, डब्ल्यू सी इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, तो एम कितना है, 1 ग्राम, 1 ग्राम बोले तो 10 टू द 1 × 10 to the -3, जी बोले तो 10 है, एच बोले तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मीन्स 1 × 10 to the power 3। देखो 10 to the power 3 से 10 to the power 3 कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आ गया कितना, 10 जूल। ठीक है, वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हो गया, 10 जूल। ठीक, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सलेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन सेम है, मींस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो डायरेक्टली वी कैन से ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बट चलो देखते हैं, उसने बोला रेजिस्टिव फोर्स मेरे को पता है, द टाइम ड्रॉ विल हिट द सरफेस, तो इसके पास कुछ एनर्जी होगी, वो एनर्जी मैं लिख लेता हूँ, दैट काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ हिटिंग कितना हो जाएगा मेरा, हाफ एम वी स्क्वायर। देखो हाफ को हाफ मैंने दिया, एम एम कितना, वन सेकेंड, 1 × 10 to the power -3, और वी स्क्वायर बोले तो 50 स्क्वायर, 50 50, 2500, 2500, 2500 अपॉन 2 × 10 to the power -3 बोले तो 1.25 जूल। ठीक है, तो लॉस कितना होगा, लॉस मीन्स दैट वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉस मीन्स दैट 1.25 -10 बोले तो कितना हो गया, मेरा हो गया -8.75 जूल। ठीक है, दैट मीन्स आंसर कौन सा हो गया, आंसर सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है क्वेश्चन 2, a spring of force constant K is cut into lengths of ratio 1:2:3. They are connected in series and the new force constant is K dash. Then they are connected in parallel and force constant is K double dash. Then ratio of K dash and K double dash they are asking. ठीक है, तो मेरे को पता है the force constant of spring, force constant of spring क्या होता है, it is inversely proportional to length। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख दूं, मैंने लिखा कि लाइक अब इसने दिया है कि आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। ठीक है, रेशियो किस में हो रहा है, लेंथ का हो गया 1:2:3, देन फोर्स कांस्टेंट विल बी इन द रेशियो, फोर्स कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट ऑपोजिट में होगा, फोर्स कांस्टेंट कितना आ जाएगा, फोर्स कांस्टेंट देन चलो लिख लेते हैं। ठीक है, आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग इन द रेशियो 1:2:3, the force constant will be in the ratio किस में हो जाएगा,
देखो इसका एलसीएम लेके करना पड़ेगा, 1:2:3 है ना, तो एलसीएम लेके करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 6:3:2, ठीक है, ये हो जाएगा। देन इफ वी आर कनेक्टिंग देम इन सीरीज कितना हो जाएगा, इन सीरीज मेरा होता है इन सीरीज 1/k बोला, तो 1/k कितना होगा मेरा, 1 इसको के टाइम्स मान लो तो 6k प्लस 1/3k प्लस 1/2k, मेरा कितना आ गया, एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो फिर से ये कितना आ गया मेरा, 1/k ओनली, ठीक है। तो के डैश की वैल्यू कितनी होगी, के डैश की वैल्यू होगी मेरी के, ठीक है। और इन पैरेलल, सेकंड केस क्वेश्चन में क्या बोला है, पैरेलल, इन पैरेलल, पैरेलल क्या होता है मेरा, के डबल डैश इज इक्वल, डायरेक्ट ऐड कर दो, डायरेक्ट ऐड कर दो, 6k प्लस 3k प्लस 2k कितना हो गया, 11k। और इनका रेशियो पूछा उसने, के डैश के अपन के डबल डैश, तो के डैश अपॉन के डबल डैश बोले तो के अपॉन 11k से के कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 1:11, मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इन 2016 में उसने क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा है, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम -2i कैप प्लस 5j कैप टू 4j कैप प्लस 3k कैप, when a force 4i cap plus 3j cap Newton is applied, how much work has done by the force, ठीक है। तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोले तो चलो इसको लिख लेते हैं, एफ वेक्टर r2 मींस फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है, r2 माइनस r1, ठीक है, यहाँ पुट कर लो, f की वैल्यू कितनी है, 4i कैप प्लस 3j कैप डॉट डॉट r2 बोले तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, 4 माइनस माइनस ऑफ 2i मीन्स 6i कैप, सॉरी सॉरी, पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है इसको कंप्लीट लिख लो, चलो इसको लिखो, फाइनल फाइनल कितना है, 4j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, माइनस ऑफ, तो इसको कितना है, -2i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है। चलो अब इसको लिखा मैंने, 4i कैप प्लस 3j कैप, इसको ऐसे रहने दिया। अब यहाँ इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, कितना होगा, देखो माइनस माइनस प्लस 2i कैप, ठीक है, और 2i कैप और माइनस, देखो ये अपना 5j कैप माइनस में रहेगा और 4i कैप प्लस में है, तो माइनस j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। अब इसको देखते हैं अपन, तो यहाँ चलो इसको डॉट प्रोडक्ट कर लो, i2i j2j, तो i2i किया 4 × 2 8 हो गया, j2j किया तो -3 हो गया, दैट मीन्स आंसर आ गया मेरा 5 जूल, 5 जूल बोले तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसने बोला है, a body of mass 1 kg begins to move under the action of a time dependent force, time dependent force F is equal to 2t I cap plus 3t square j cap Newton, when I and j are unit vectors along x and y, what power will be developed by the force at the time t, ठीक है। पावर पूछा है, देखो मास, मास के माना मास कितना है, मास इज 1 kg, ठीक है। और मेरा, चलो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, बिकॉज एनी हाउ मेरे को क्या निकालना, पावर पूछा, फोर्स माना मेरे को वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज फोर्स इनटू वेलोसिटी मेरा पावर होता है, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन निकालना, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एफ अपॉन एम, तो एफ कितना है, 2t I कैप प्लस 3t² जे कैप अपॉन 1, तो ये सेम ही आ गया। और एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन हो गया मेरा 2t I कैप प्लस 3t² जे कैप, ठीक है। और मेरे को निकालना वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी मेरा होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, यहाँ पुट कर लो वैल्यूज, इंटीग्रेशन ए बोले तो 2t I कैप प्लस 3t² जे कैप डॉट डी टी, ठीक है, इंटीग्रेट किया इसको, इंटीग्रेट किया तो कितना आ गया, देखो 2t² का, 2t² का इंटीग्रेशन होता है 2 2 ओनली,
टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन मेरा हो जाएगा, तो टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, और ये मेरा आई कैप का आई कैप प्लस, देखो 3 टी स्क्वायर इंटीग्रेशन हो जाएगा अगेन टी क्यूब अपॉन 3, और जे कैप का जे कैप, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो कितना हो गया टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, ये मेरा कितना आ गया, ये आ गया मेरा वेलोसिटी। ठीक है, अब पावर, पावर क्या होता है, पावर मेरा होता है एफ डॉट वी, एफ डॉट वी। ठीक है, पुट कर लो, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू मेरी 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप डॉट आ गया ए टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यू जे कैप। ठीक है, देखो आई टू जे करना है, तो कितना होगा 2t टू द पावर 3 प्लस जे मीन्स 3 into 2 to the power 5, और आंसर आ जाएगा इन व्हाट, मीन्स ऑप्शन कौन सा रहेगा मेरा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ये रहेगा ना ऐसे, ठीक, 2t क्यू प्लस 3t टू द पावर 5। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes this one by the end of second revolution after the beginning of the motion? ठीक है, आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द मोशन, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, तो इसके लिए चलो कल वाला वीडियो देख लेना, ये डबल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद मींस काइनेटिक एनर्जी इसने गिवन है, काइनेटिक एनर्जी से मैं हाफ एम बी स्क्वायर की वेलोसिटी निकाल लूंगा, वेलोसिटी से फिर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हारा ए आ जाएगा डायरेक्टली 0.1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी with which a body of mass m must enter a vertical loop of radius r so that it can complete the loop। ये भी क्वेश्चन हमने कल किया था, तो और ये तो इसका डायरेक्टली इसमें सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डायरेक्टली बी रूट 5 जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, or sorry, a ball is thrown vertically downwards from a height of 20 meter with an initial velocity v0 or v0. It collides with the ground, loses 50% of its energy in collisions, and rebounds to the same height. The initial velocity v naught will, ठीक है, v naught पूछिए। ठीक है, तो मैंने बोला चलो हाइट, हाइट कितने का बना है, हाइट का बना है 20 मीटर, तो यहाँ से बॉल है, यहाँ से चलो बॉल बना लेते हैं, ये कहाँ कितने हाइट से, हाइट है मेरा 20 मीटर। ठीक है, इक्वल हाइट करिए, तो 20 मीटर मीन्स इसने बोला है कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो रहा है, काइनेटिक फाइनल मीन्स लॉस हो रहा है, हाफ बच रहा है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लूँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, चलो ठीक है, अब इसको देखो, इसमें काइनेटिक एनर्जी फाइनल का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर अपॉन इनिशियल का हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एम से हाफ एम कैंसिल हो गया, तो वी फाइनल, देखो वी फाइनल स्क्वायर अपॉन वी इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स कितना हो गया मेरा, हो जाएगा यहाँ से दैट कितना है मेरा वी फाइनल, चलो अच्छा डायरेक्टली मैं वी फाइनल की वैल्यू रख लो, मैंने कंसिडर किया कि एच तक जाएगा, 2g h अपॉन रूट ऑफ वी इनिशियल कितना लिख सकते हैं, वी इनिशियल लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर, कुछ वेलोसिटी गिवन होगी उसको, प्लस 2g h, और इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1/2। ठीक है, 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व किया तो कितना ये हो जाएगा मेरा 2g h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 आ गया, इधर कितना आ गया वी नॉट स्क्वायर प्लस 2g h, और वी नॉट स्क्वायर कितना है? ये 4g, इधर वाला 4gh हो गया, माइनस 2gh मीन्स 2gh बचेगा, तो 2gh इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, दैट मीन्स वी नॉट स्क्वायर कितना आ गया, वी नॉट कितना आ गया, वी नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh
और h की वैल्यू पुट कर दो 2 × 10 × 20 मीन्स 400 बोले तो 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर बोले तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हार्ट ऑफ अ मैन पंप्स 5 liters of blood through the arteries per minute at a pressure of 150 mm of mercury. If the density of mercury is this, कितना 1.6 into 10 to the power 3 है, ये 10 to the power 3 kg per meter cube। ठीक है, एंड जी इज टू 10 मीटर पर सेकेंड इसको देन द पावर एंड वाट। देखो वर्कडन का एक और फॉर्मूला होता है, हमको पता है वर्कडन वर्कडन का फॉर्मूला नॉर्मल कौन सा पता है, एफ इंटू वेलोसिटी, सॉरी एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट मेरे को पता है। तो यहाँ से अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो एफ बोले तो एफ क्या हो जाएगा मेरा, एफ बोले तो फोर्स, और फोर्स को मैं पावर के टर्म में लिख दो एक। देखो फोर्स को लेकर मतलब मैंने फोर्स को प्रेशर के टर्म में, फोर्स को प्रेशर के टर्म में क्या होता है, प्रेशर होता है मेरा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स हो जाएगा मेरा कितना, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो ए इंटू एक्स ये मेरा हो जाएगा वॉल्यूम, तो इसको लिख दिया मैंने पी इंटू वी, वी इज वॉल्यूम। अब देखो चलो अब देखते हैं ये मेरा किसका फॉर्मूला होगा, वर्क डन का, वर्क डन का। ठीक है, तो पावर कितना हो जाएगा, पावर बोले तो W अपॉन टाइम, तो P V अपॉन टी। और P कितना गिवन है, P गिवन है मेरा P किससे निकाल लो, P निकाल लो मेरा रो जी एच बोले तो देखो रो इसका गिवन है कितना 13.6 इंटू जी, जी बोले तो 10 इंटू एच उसने गिवन है कितना 150 mm, तो 150 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम कितना 5 लीटर, 5 इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम टाइम उसने बोला है, देन द पावर एंड वाट, टाइम टाइम कुछ गिवन है इन वन पर मिनट बोले तो 60 सेकेंड। ठीक है, पर मिनट बोले तो 60 सेकेंड। अब यहाँ इसको सॉल्व किया, देखो सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁶, और इसको सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेटली मेरा आता है 1.7 वाट। जस्ट फॉर्मूला यूज करना और कैलकुलेशन करना। ठीक है, सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, ठीक है, अब इसने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2 move with initial velocities u1 and u2, on collision one of the particle get excited to higher level after absorbing energy epsilon or e। ठीक है, if the final velocities of particles be v1 and v2 then वी मस्ट है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत सिंपल सिस्टम, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन का लगा लो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। तो इनिशियल एनर्जी तो फिक्स है ना, इनिशियल एनर्जी फिक्स है, तो इनिशियल एनर्जी क्या लिख दिया मैंने, इनिशियल एनर्जी लिखा हाफ m1 u1² प्लस हाफ m2 u2²। ठीक है, और फाइनल एनर्जी कितना हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2²। बट उसने बोला है कि कुछ एक्साइटेड एक्सटेज में जाने के लिए भी उसका एनर्जी है कितना, तो इसको लिख लो ई। ठीक है, तो यहाँ देखो कोई ऑप्शन है सब, हाफ m1 u1² प्लस हाफ m2 u2² इज इक्वल टू कुछ समथिंग समथिंग बोले तो हाँ ए वाला देखो, ये ऑप्शन डी में ए ई को इधर ट्रांसफर कर दो माइनस में आ जाएगा, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन उसने बोला है टू सिमिलर स्प्रिंग्स P and Q have spring constant Kp and Kq such that Kp is greater than Kq। ठीक है, Kp is greater than Kq, they are stretched first by the same amount case A, then by the same force case B, the work done by the spring Wp and Wq are related as in case 1 and case 2 respectively। ठीक है, तो मेरे को पता है देखो केस वन में क्या होगा, केस वन में मेरा होगा केस वन, केस ए में क्या है, W इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, और उसने बोला है कि दे आर स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट मीन्स अब देखो W विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, तो के किसका ज्यादा है, के ज्यादा है P का, तो वर्क डन किसका ज्यादा हो जाएगा,
वर्क डन मेरा P का ज्यादा होगा किससे, वर्क डन ऑफ Q। ठीक है, तो फर्स्ट केस में कितना हो गया मेरा, वर्क डन ऑफ P विल बी ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ Q। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले में क्या बोला है उसने, केस बी। केस बी, तो चलो केस बी देखते हैं। केस बी में उसने बोला है कि दैट फोर्स शुड बी सेम। तो मेरे को पता है एक वर्क डन का फॉर्मूला केस बी। केस बी में चलो वर्क डन का फॉर्मूला लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू हाफ एफ इंटू एक्स। ठीक है, फोर्स की वैल्यू सेम है, फोर्स की वैल्यू सेम, इसकी वैल्यू सेम है, तो मैंने लिखा एफ इज इक्वल टू के पी एक्स पी इज इक्वल टू के क्यू एक्स क्यू, के क्यू एक्स क्यू। ठीक है, के क्यू एक्स क्यू ये लिखा। ठीक है, तो मेरा कितना होगा, एक्स पी अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल के क्यू अपॉन के पी, ये होगी। तो देखो, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली, एक्स ही हो रहा है ना वो, डब्ल्यू, तो इसको लिख लो डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू एक्स पी अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू के क्यू अपॉन के पी। ठीक है, और मेरे को पता है उसने बोला के क्यू इज लेस, के क्यू इज लेस देन के पी। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये मेरा मेरा हो जाएगा डब्ल्यू पी इज लेस देन डब्ल्यू क्यू। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है a block of mass 10 kg moving in x direction with a constant speed of 10 meter per second is subjected to a retarding force F is equal to 0.1 x joule per meter, joule per meter during its travel from x is equal to 20 मीटर टू 30 मीटर, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रख लेते हैं पहले। काइनेटिक एनर्जी देखो, स्पीड कितना हुआ, स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो मेरा होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ एम बोले तो 10 के जी, 10 इंटू वी स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा 5, कितना आ गया 500 जूल, 500 जूल। अब उसने पूछा है कि देखो कुछ लॉस भी हो रहा है, कुछ लॉस, लॉस कितना हो रहा है, लॉस निकल लेते हैं, तो लॉस कितना होगा, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, अब फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, और ये लॉस में इस माइनस में आ जाएगा, तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 20 to 30, तो 20 to 30 लिमिट अप्लाई कर लो, 20 to 30, एफ की वैल्यू कितनी है 0.1 एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, 0.1 एक्स इंटू डी एक्स, देखो देखो 0.1 को बाहर निकाल लो, तो कितना होगा -0.1 बाहर लिखा, और एक्स का इंटीग्रेशन मेरा होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पुट कर लो, यहाँ कितना होगा 20, और यहाँ कितना होगा 30, तो 0.1 को -0.1 को ऐसे रहने दिया, अपर लिमिट चलो 1, इधर 2 भी लिख लो, अपर लिमिट 30 का स्क्वायर 900 होगा, माइनस लोअर लिमिट 20 का स्क्वायर मेरा 400 होगा, तो इधर देखो इसको एक 900 माइनस 400 मेरा होता है 500, तो माइनस 0.1 इंटू 500 अपॉन 2। ठीक है, ये कितना हो गया मेरा 250, और 250 इंटू 0.1 मेरा होता है माइनस ऑफ 25 जूल। और उसने पूछा है, क्या पूछा है, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। देखो ये तो मेरा होना था अगर लॉस नहीं होता तो, देखो फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल बोले तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो के ई फाइनल इज इक्वल टू के ई जो थियोरेटिकल होना चाहिए था वो, और इसमें से ये वाला 25 जूल। तो आंसर कितना, आंसर मेरा हो जाएगा 500 माइनस 25 बोले तो 475 जूल, आंसर 475 जूल बोले तो बी इज द ओके। So thank you so much for watching, and if you need PDF, so just let me know in comment, and please provide feedback also. Thanks. We'll see you in the next class.